اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امید ہے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے۔ ایران کے ساتھ مزید بات چیت کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب امریکی بحری بیڑا روانہ کیا، لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پہلے بھی ایران سے بات چیت ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوگی، تاہم کہا کہ ان کے خیال سے کیوبا کی حکومت قائم نہیں رہ سکے گی۔ بولے برطانیہ کے لیے چین کے ساتھ کاروبار کرنا بہت خطرناک ہے۔ چین کے ساتھ تجارتی تعاون برطانیہ کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ کینیڈا کے لیے چین کے ساتھ کاروبار کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ چین کے ساتھ بڑھتے تجارتی تعلقات پر اتحادیوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے لیے پائیدار مذاکرات اور سفارتی تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ ادارہ جاتی میکانزم کے ذریعے اعلیٰ سطح روابط اور مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ملک کے بڑے ایکسپورٹرز اور کاروباری شخصیات سے ملاقات اور خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم ایکسپورٹرز اور صنعت کاروں سے معاشی صورتحال اور حکومتی اقدامات پر بات کریں گے۔ قومی معیشت میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ایکسپورٹرز کو ایوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم ملکی صنعت، تجارت اور برآمدات میں اضافے سے متعلق اپنا ویژن پیش کریں گے۔ کاروباری برادری کو بتایا جائے گا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کر استحکام تک کیسے لایا گیا۔ وزیر اعظم معیشت کو استحکام سے ترقی کی طرف لے جانے کا اگلا روڈ میپ پیش کریں گے۔ سرمایہ کاری کو آسان بنانے اور بزنس فیسیلیٹیشن سے متعلق حکومتی اقدامات پر بھی بات ہوگی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 14 سال بعد فضائی رابطے بحال ہو گئے۔ بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن بیمان ایئر کی افتتاحی پرواز ڈھاکہ سے کراچی پہنچ گئی۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کہا کہ سازشیں دم توڑ گئی ہیں۔ پاکستانی اور بنگلہ دیشی عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اب ہم مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن کی افتتاحی پرواز 150 مسافروں کو لے کر ڈھاکہ سے کراچی پہنچی تو پرتپاک استقبال کیا گیا۔ استقبالیہ تقریب میں گورنر سندھ کامران ڈسوری، بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اقبال حسین اور ڈپٹی ہائی کمشنر ثاقب کے علاوہ CAA اور PAA کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ خوشی کے اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ یہ صرف فضائی اشتراک نہیں بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان زندگی کے ہر شعبے میں تعاون بڑھے گا۔ ہم اس پرواز کے ذریعے ایک دوسرے ملکوں کے اندر سفر کو یقینی بنا رہے ہیں، اور یہ سفر تجارت، محبت، امن اور پیار کا گہوارہ بنے گا۔ ہمارے درمیان جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے اس میں تجارت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں اس کو ہم یقینی طور پر دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ہم ایک دوسرے کے کلچر سے واقف ہیں، ہم ایک دوسرے کی طرح کے ہیں اور ہم ایک ہیں۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر اقبال حسین نے پروازوں کی اجازت دینے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ براہ راست فضائی رابطوں کی بحالی سے دونوں ملکوں کے درمیان سیاحت، تجارت اور تعلیمی میدان میں تعاون میں اضافہ ہوگا۔ I am confident that this will enhance the relations between Pakistan and Bangladesh in many sectors, especially in the tourism, in the health sectors, education, trade, and also many other areas where we can cooperate, and inshallah we'll work together. افتتاحی پرواز سے سفر کرنے والے مسافروں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پروازوں کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا۔ 30 سال بعد جا رہا ہوں، مجھے تو خوشی ہے۔ میں تو اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ ایسے چلے اور ہر لوگ ملے، ہر ترقی بھی ہو، پاکستان کا بھی اور بنگلہ دیش کا بھی۔ ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی، سب کچھ رشتہ دار وہاں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ایئر لائن چالو ہو گئی ہے، اس سے ہمیں بہت خوشی ہے۔ ہم زیادہ خوشی ہے جی جلدی بنگلہ دیش میں جی پہنچ گیا، یہ ہم خوشی ہے۔ بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن ہفتہ وار 2 پروازیں ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان آپریٹ کرے گی۔ کیمرامین سرور رضا کے ساتھ طارق ابوالحسن، جیو نیوز، کراچی۔ لاہور میں کھلے مین ہول میں خاتون اور بچی کے گر کر جاں بحق ہونے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کے متعلقہ اداروں پر برہم۔
कमिश्नर लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा, LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस बराबर के जिम्मेदार करार। भाटी चौक हादसे पर आला सतह के इजलास में कहा कि हर सतह पर मुजरिमाना फेल हुआ है। 10 डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, जवाब एक के पास भी नहीं। आधा दर्जन इंचार्ज हैं, लेकिन जब वाक़या हुआ तो कोई पहुंचा ही नहीं। कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर, DG LDA और असिस्टेंट कमिश्नर को सज़ा मिलनी चाहिए। टेपा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सेफ्टी इंचार्ज और वासा के जिम्मेदारान को गिरफ्तार करने और नौकरी से बर्खास्त करने का भी हुक्म। ये हिदायत भी दी कि यकीनी बनाएं कि आइंदा इन्हें दोबारा नौकरी ना मिले। कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर मुतासरा ख़ानदान को देने की हिदायत। कहा यह कोई राजनपुर, लिया या भक्कर की बात नहीं हो रही, ये लाहौर सेफ सिटी में हुआ है। इतना बड़ा हादसा हमारी नाक के नीचे हुआ। बात को घुमाने की कोशिश की, इस तरह के हमें भी यकीन आ गया। फिर बजाय उसके ख़ानदान को मदद देते उन्हें चोर डाकू बनाकर थाने ले गए। मरीम नवाज़ ने कहा कि एक एक जगह के 10 इदारे हैं, लेकिन ज़िम्मेदार कोई भी नहीं। ये पंजाब है, यहाँ एक एक जान की कीमत है। यहाँ पर मैं भी जवाबदेह हूँ, आप भी जवाबदेह हैं। ट्विस्ट करने की कोशिश की गई जैसे वाक़या हुआ ही नहीं। मरीम नवाज़ ने कहा कि आज़मा बुखारी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी वही आज़मा बुखारी को भी मिल रही थी। आप लोगों के सीने में दिल भी है या नहीं है? अल्लाह ताला को जवाब देना है या नहीं देना? कमिश्नर लाहौर आप जवाब दें मुझे, DC लाहौर आप भी मुझे जवाब दें, DG LDA आप मुझे जवाब दें इस बात का, MD वासा आप भी मुझे जवाब दें इस बात का, और बताएं मुझे कि ऐसा क्यों हुआ है। 10 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए, जवाब एक के पास भी नहीं है। अब मुझे बताएं कि बिल्कुल अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बताएं, ये एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? वहाँ पर सुपरवाइज़र कौन है जिसकी वहाँ पर ड्यूटी थी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे? वैसे असूलन तो मुझे कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर और DG LDA को, इनको सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए फ्रैंकली, और स्पेशली असिस्टेंट कमिश्नर जिनके जो 23 से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट है। इससे बड़ी और किस नेग्लिजेंस का इंतज़ार कर रहे हैं? इसमें और मर्डर में वैसे कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा का नाम लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर हिमसेल्फ का नाम ही नहीं, जो कि असल इंचार्ज है वहाँ का। दानियाल जो सेफ्टी इंचार्ज है, उसका ताल्लुक किस महकमे से? अभी तक तो 6 नाम आ गए, आधा दर्जन वहाँ पर जो है वो इंचार्जेस हैं, और इंचार्ज ने काम देखो क्या किया। और जिस वक्त वो बच्ची गिर के मर गई है, उसके साथ उसकी बेटी गिर के मर गई है, उसके बाद कोई इंचार्ज सामने नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये जो जाहिद हुसैन PD टीपा जो है, बिलाल नेस्पाक, मिस्टर उस्मान बाबर डिप्टी मैनेजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर वासा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, बात यह है कि ये आप नहीं बहाना कर सकते कि फ़लाँ चीज़ में हम बिज़ी थे तो हम सारे उधर लगे हुए थे, ये इधर है। हर चीज़ का अपना अपना एक निज़ाम होता है, एक चीज़ को छोड़ के और एक चीज़ के पीछे पड़ के बाकी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जब आपके पास टेक्नोलॉजी दी है, आपको पूरा इक्विप करके दिया है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, फिर आपकी इतनी बड़ी नेग्लिजेंस है। आई थिंक ये जो उस्मान यासीन है, अजय दानियाल। लाहौर के इलाके भाटी गेट में मां बेटी की सीवरेज लाइन में हलाकत के मुकदमे में नामजद 3 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खातून की लाश 5 घंटे बाद और बच्ची की लाश 18 घंटे बाद आउटफॉल रोड की सीवरेज लाइन से मिली। मियां आबिद की रिपोर्ट। सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बाक होने वाली 24 साल सादिया और उसकी 10 माह की बेटी रिदा का मुकदमा बाप साजिद हुसैन की मुद्दत में दर्ज हुआ। मुकदमे में नामजद 3 मुलजिमान प्रोजेक्ट मैनेजर असगर संधू, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज को भाटी गेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दाता दरबार तो सही मंसूबे पर बुध की शाम खुली सीवरेज लाइन में खातून और उसकी बेटी रिदा फातिमा गिर गई। रात गए खातून की लाश जाए बकुआ से 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिल गई, जबकि उसकी मासूम बेटी की लाश भी 18 घंटे बाद उसी सीवरेज लाइन से मिली। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के हुक्म पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दी गई, जो अब जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कैमरा टीम और रिपोर्टर अहमद फराज के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। उधर फैसलाबाद के इलाके फरीद टाउन में सीवेज के पानी से बने जौहर में डूबकर 2 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक इलाके में गैर मंजूर शुदा तामीरात जारी थीं। सीवरेज का निज़ाम नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से पानी प्लॉट में जमा हो रहा था। डेवलपर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ताहम पुलिस ने FIR में बच्ची की हलाकत का जिक्र ही नहीं किया। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया।
ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट पर 168 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 8 विकेट पर 146 रन बना सकी। साइम अयूब ने 22 गेंदों पर 40 रन बनाने के अलावा 2 विकेटें भी हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा मैच हफ्ते को खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में ओपनर साहबजादा फरहान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। दूसरे विकेट पर साइम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा ने 74 रन की शराकत लगाई। साइम 22 गेंदों पर 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा ने 39 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम 24 रन बना सके। फखर जमान 10, उस्मान खान ने 18 रन बनाए। मोहम्मद नवाज 15 रन बनाकर नॉट आउट रहे। एडम जम्पा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में साइम अयूब ने मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड की कीमती विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ाया। शॉर्ट 5 और ट्रेविस हेड 23 रन बना सके। कैमरन ग्रीन 36 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जेवियर बाटलेट 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 विकेट पर 146 रन बना सकी। साइम अयूब और अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने मैच 22 रन से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा मैच हफ्ते को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच देखने कदाफी स्टेडियम पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टिमोथी केन को खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की कदाफी स्टेडियम की खूबसूरती और शायकीन क्रिकेट के जोश व खरोश की तारीफ। उन्होंने कहा, कदाफी स्टेडियम में आकर बहुत खुशी हुई। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच देखने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टिमोथी केन को खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कज़ाफी स्टेडियम की खूबसूरती और शायकीन क्रिकेट के जोश और खरोश की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कज़ाफी स्टेडियम में आकर बहुत खुशी हुई। मैच देखने के लिए चीफ ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जेम्स अल्सोप, बोर्ड मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जोश रोदल और सीईओ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन पॉल मार्च भी कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदारान का भी कज़ाफी स्टेडियम पहुंचने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि सीवेज लाइन में माँ बेटी की हलाकत के वाक़े पर इंतज़ामिया जो बता रही थी वो शेयर करना पड़ा। ज़ाती तौर पर भी बहुत शर्मिंदा और माफ़ी की तलबकार हूँ। इस्तीफ़े के लिए भी तैयार थी, लेकिन वज़ीर आला का हुक्म था कि ये तुम्हारी गलती नहीं। एक बयान में वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी का कहना था कि वो लाहौर में माँ बेटी की हलाकत के अफसोसनाक वाक़े पर दिली तौर पर दुखी और शर्मिंदा हैं। इंतज़ामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने गलतियों और कोताहियों को छुपाया नहीं, बरमला उस पर नदामत का इजहार किया और गुनाहगारों को गिरफ्तार करवाया। पंजाब में इंसानी जान के ज़िया की कोई माफ़ी नहीं। इंतज़ामिया जो बता रही थी वो मुझे शेयर करना पड़ा। ज़ाती तौर पर भी बहुत शर्मिंदा और माफ़ी की तलबगार हूँ। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बानी पीटीआई का चेकअप मामूल का मामला था, जिसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। बानी पीटीआई का पिम्स में इलाज उनकी इजाज़त से किया गया। उनकी शिकायत पर पहले भी अडियाला जेल के अंदर कायम अस्पताल में उनका इलाज होता रहा है। तहरीक इंसाफ की किसी भी यकीन दहानी पर एतबार नहीं है। कोई इतनी बड़ी इवेंट नहीं थी और एक रूटीन का मामला था जिसको इतना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको कहा जा सकता है। और मैं ये भी आपको बताऊं कि ये पहली दफ़ा नहीं है। अडियाला जेल के अंदर जो अस्पताल है वहाँ पे मुतवातिर तौर पे मुख्तलिफ चीज़ों का जो इलाज है वो खान साहब की जब भी शिकायत हुई है मालिजीन ने उनका इलाज भी किया है। इट्स अ नॉन इशू, इट्स अ नॉन इवेंट। पीटीआई की तरफ से ये उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से इस पर बिल्कुल एक सियासत जो है करने की कोशिश की गई, उसको पोलिटिसाइज़ किया गया। ज़ाहिरी बात है कि उनकी इजाज़त ही थी, उन्होंने खुद इस पे इजाज़त दी कि बिल्कुल उनको ट्रीटमेंट जो तकलीफ थी उसकी ट्रीटमेंट उनको दी गई। तमाम तर जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए गए हैं, तमाम तर जो ट्रीटमेंट्स उनको मिली हैं वो तमाम तर वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तालबात तो ये पहले भी करते रहे और ये तो नहीं हो सकता कि इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक या इनकी डिमांड पे जो है तमाम तर मामला किया जाए। ज़ाहिरी बात है कि कायदा कानून भी कोई चीज़ है और उस हवाले से मैं वाज़े तौर पर आपको कहूँ कि बिल्कुल उनकी सेहत दुरुस्त है, वो बिल्कुल सेहतयाब हैं। शायद ये अपने 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से इसको तूल देना चाहते हैं। ख्वाहिशात पे तो तमाम तर मामला नहीं हो सकता ना, ये तो ख्वाहिशात हैं। तो जाहिर बात है अगर वो कोई पॉलिटिकल बात ना भी हो, इनकी अंडरटेकिंग में कितना कोई यकीन कर लें। सोशल मीडिया अकाउंट्स ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये दावा बोलने की कोशिश करें। सो ऑफ कोर्स करें जो करना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावने ख़ुसूसी बराए इत्तलात शफ़ी जान ने कहा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी रात अडियाला जेल के बाहर गुजारेंगे, सुबह 9 बजे आगे का लाहे अमल देंगे और अडियाला से कहीं और जाएंगे। अभी हम हुजूम नहीं बुला रहे। हमने हुकूमत से कहा है कि बानी पीटीआई के 3 ज़ाती मुआलजीन में से किसी एक को जेल के अंदर ले जाकर उनका चेकअप कराया जाए। अगर रिपोर्ट तसल्ली बख्श हुई तो हम घरों को चले जाएंगे। हम ये यकीन दहानी भी कराते हैं कि डॉक्टर बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा।
عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں جو ہمیں تشویش ہے، اس سے بڑا ایشو نہ پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو میں کوئی ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کے لیے ہے۔ اس وقت دھرنا جاری ہے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب اس وقت موجود ہیں، ہمارے تمام تر پارلیمنٹیرین اس وقت پہنچ چکے ہیں، کچھ راستوں میں ہیں، وہ بھی پہنچ رہے ہیں اور رات بھر ہم یہاں ہی رہیں گے۔ ہم نے ان کو ایک آفر دی، ہم نے 3 نام دیے ڈاکٹرز کے جو کہ ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے، ان میں سے کسی کو بھی آپ اندر لے جائیں، وہ عمران خان صاحب کا چیک اپ کریں گے، باہر آئیں گے، وہ رپورٹ مرتب کریں گے، اگر رپورٹ تسلی بخش ہوئی تو ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے حکومت اپنی ہٹ درمی پہ وہی کڑی ہے جہاں پہلے کڑی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو چھپایا، چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ ہفتے کی رات کو یہ ہوا ہے تو یہ نارمل چیز نہیں ہے، ہم نارملائز اس کو نہیں ہونے، اپنے صدور کو ہم نے الرٹ کر دیا ہے، اپنی تنظیموں کو ہم نے الرٹ کر دیا ہے۔ میں شاہ زیب صاحب صرف آپ کو اتنا کلو دوں گا کہ یہ دھرنا یہاں ختم نہیں ہوگا، ہم صبح 9 بجے اگلا لائے عمل دیں گے اور ہم یہاں سے کہیں اور موو کریں گے۔ کیوں اتنی ضد ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ڈاکٹر کی تو بات ہے، جانے دیں، ان کا چیک اپ کریں گے، وہ باہر آ جائیں گے، ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، تسلی بخش ریزلٹس ہوں گے۔ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ کیوں بات ادھر تک پہنچی؟ میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی جو کہ اسی چیز کے اسپیشلسٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پروسیجر کی بات ہو رہی ہے وہ 20 منٹ میں ہو ہی نہیں سکتی، اس پہ کم سے کم 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی انفارمیشن ہے کہ ان کو ٹیکے لگائے گئے، کس چیز کے ٹیکے لگائے گئے، یہ ساری تشویش ہے ہمیں۔ شاہ زیب صاحب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم جو کریں گے اس میں کراؤڈ نہیں ہوگا، ہم کراؤڈ کو نہیں بلا رہے، ہم کراؤڈ کو بلائیں گے تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ہم یہ شورٹی بھی دیتے ہیں کہ جو ذاتی معالج اندر جائے گا وہ کوئی سیاسی گفتگو کرے گا ہی نہیں۔ ہم اگر کچھ بھی ان کو ہوا تو بیس وکیل صاحب یہ بات سن لیں، آپ کی جماعت، آپ سب ذمہ دار ہوں گے اور باقی سب بھی اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے، یہ بڑا کلیئر میں کہہ رہا ہوں۔ وادی تیرہ سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ 10 جنوری سے اب تک 13,000 سے زائد خاندانوں کی رجسٹریشن کی جا چکی ہے۔ رجسٹریشن کے طریقہ کار سے متعلق مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز قاضی فضل اللہ۔ جی، وادی تیرہ سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے اور متاثرہ خاندان کی رجسٹریشن کے لیے 5 مختلف پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ اس وقت میں باڑہ بازار کے قریب الحاج مارکیٹ میں قائم رجسٹریشن پوائنٹ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ جو خاندان آتے ہیں رجسٹریشن کے لیے، سب سے پہلے انہیں محکمہ صحت کی جانب سے اس کی پولیو کی تصدیق کی جاتی ہے، بچوں کی پولیو کی تصدیق۔ دوسری طرف اس کے بعد جو ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے اس کا ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے کہ ان کے بچے وادی تیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ نہیں۔ تیسرے مرحلے میں 4 قبائلی عمادین جو یہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ متاثرہ خاندان کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ وادی تیرہ علاقہ میدان کے رہائشی ہیں۔ بعد میں انہیں نادرا سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور آخر میں انہیں ٹوکن بھی فراہم کی جاتی ہے اور کرایہ کی قیمت بھی انہیں 22,000 سے لے کر 44,000 روپے تک کرایہ بھی فراہم کی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے سرکار کی طرف سے ایک موبائل سم فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ آئندہ کے لیے انہیں ماہانہ طور پر جو امداد ہے وہ سم کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ کے ڈیٹا کے مطابق 10 جنوری سے شروع ہونے والے نقل مکانی اب تک جو ہے 13,000 سے زائد خاندان جو ہے یہاں پہ رجسٹر ہو چکے ہیں اور ان میں سے بیشتر جو ہے وہ نقل مکانی بھی کر چکے ہیں۔ جی، حکومتی کمیٹی کے سانحہ گل پلازا پر تفتیشی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ میں فائر بریگیڈ اور پولیس کی نااہلی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کراچی میں سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے قائم حکومتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق آگ گراؤنڈ فلور پر نیو توکل فلاور اینڈ گفٹ شاپ میں رات 10:15 بجے لگی۔ دکان مالک نے 11 سال کے بیٹے کو دکان پر چھوڑا ہوا تھا جس نے ماچس کی تیلی جلائی جو غلطی سے مصنوعی پھولوں پر گر گئی۔ آگ بھڑکی اور آتش گیر مواد کی موجودگی کے باعث تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ چوکیدار نے 5 منٹ بعد بجلی بند کر دی۔ اس وقت عمارت کے اندر تقریباً 2,000 سے 2,500 لوگ موجود تھے۔ غیر محفوظ برقی وائرنگ، ایئر کنڈیشنرز اور کھلے پائپس نے صورتحال کو سنگین بنا دیا۔ عمارت میں بیسمنٹ کے علاوہ مرکزی ایئر کنڈیشننگ سسٹم موجود نہیں تھا۔ اے سی ڈکٹس کے ذریعے بہت کم وقت میں آگ بیرونی گیٹس کے چھت تک جا پہنچی۔ آگ لگنے کے وقت گراؤنڈ فلور کے 3 تا 4 گیٹس کھلے ہوئے تھے۔ گراؤنڈ فلور پر سیڑھیوں اور راستوں میں دھواں بھر گیا جس سے لوگ دکانوں میں پھنس گئے۔ عمارت میں موجود خارجی راستے بند تھے یا تجاوزات قائم ہو چکی تھی۔ فائر ٹینڈر کو پانی کی فراہمی میں نمایاں تاخیر ہوئی۔ پہلا
वाटर बाउजर रात 11:53 पर पहुंचा। मुसलसल पानी की फरहामी रात 12 बजे के बाद शुरू हुई। लोगों को निकालने के लिए लोहे की रॉड्स काटने के लिए आलात मौजूद नहीं थे। फायर फाइटर्स के पास मुनासिब आलात, हिफाजती सामान, मतलूबा तरबियत और महारत नहीं थी। हुजूम को काबू में रखने और इलाके को घेरे में लेने के पुलिस इक़दामात मौसर न थे। हुजूम जमा होने के बाइस फायर फाइटिंग की कोशिशें मुतासिर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में दुकानों की तादाद 1102 से बढ़ाकर 1153 और सीढ़ियों की चौड़ाई कम की गई, जबकि दरवाजों की तादाद 18 से कम करके 13 कर दी गई। रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया कि इस तरह की आग बुझाने के लिए मुतल्लिका इदारों में कोई बाकायदा ड्रिल नहीं करवाई गई। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम और अस्पताल के इंतज़ामी उमूर को मज़ीद मौसर बनाने के लिए निश्तर अस्पताल के CCTV को सेफ सिटी पंजाब के सिस्टम से मुंसलिक किया जा रहा है। मज़ीद बता रहे हैं जौदत नदीम। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर अस्पताल को अब सेफ सिटी से लिंक किया जा रहा है और सेफ सिटी से निश्तर अस्पताल में जो एमरजेंसी वार्ड है वहाँ के 64 कैमरे और OPD वार्ड के 16 कैमरे जो हैं वो लिंक कर दिए जाएंगे, जिससे मजमूई तौर पर 80 के करीब CCTV कैमराज जो हैं वो डायरेक्टली सेफ सिटी मुल्तान से कनेक्ट होकर उसको लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी से भी मॉनिटर किया जा सकता है, जिससे ना सिर्फ जो नाखुशगवार वाक़े निश्तर अस्पताल के अंदर होते हैं उसको बेहतर तरीके से देखा जा सकेगा, बल्कि जो मरीज़ों की तादाद है और ओवरऑल जो निश्तर से रिलेटेड गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उनको फौरी तौर पर रिजॉल्व किया जा सकेगा। निश्तर इंतज़ामिया का अभी सेफ सिटी से अथॉरिटी से हवाले से रब्ता जारी है और जल्द ही ये बताया जा रहा है कि 1-2 दिन तक जो है इस पर फौरी काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से बताया जा रहा है कि इसको मॉनिटर करने के साथ साथ जो निश्तर अस्पताल में होने वाली जो क्रिमिनल एक्टिविटी थी, जिसमें मोटरसाइकिल्स का चोरी हो जाना या दीगर जो इस तरह की मेडिकल इक्विपमेंट का चोरी हो जाना है, उसमें भी कमी वाक़या हो सकेगी। निश्तर इंतज़ामिया का ये कहना है कि इससे न सिर्फ निश्तर की ओवरऑल गवर्नेंस बेहतर होगी, बल्कि जो नाखुशगवार वाक़े इसके अंदर रिपोर्ट होते हैं उनको भी फौरी तौर पर उसको रिजॉल्व किया जा सकेगा। जी आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला की तेल सनद पर पाबंदियां नरम कर दी हैं। ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक वेनेजुएला की तेल सनद के लिए जर्नल लाइसेंस जारी किया। नए लाइसेंस से हुकूमत को मामूल की तेल ट्रांजैक्शंस की इजाज़त मिल गई है। तेल की बरामद, फ़रोख्त, तरसील और रिफाइनिंग अमरीकी इदारों के लिए मुमकिन हो सकेगी। फैसला वेनेजुएला में सरमायाकारी बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। गवादर एक बार फिर इल्म, अदब और सकाफत का मरकज़ बन गया। RCD काउंसिल के ज़ेर एहतमाम गवादर कुतुब मेला 4 रोज़ तक जारी रहेगा। इस इल्मी और सकाफती काविश में जियो न्यूज़ बतौर मीडिया पार्टनर गवादर कुतुब मेले के साथ है, ताकि गवादर की ये अदबी और सकाफती सरगर्मियाँ पूरे मुल्क तक पहुँच सकें। सदाकत बलोच रिपोर्ट करें। RCD काउंसिल के सैयद ज़हूर शाह हाशमी ऑडिटोरियम में कुतुब मेले का इफ्तिताह माहिर तालीम कुर्रतुल ऐन बख्तियारी ने किया, जो 29 जनवरी से 1 फरवरी तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में मुल्क भर से 60 से ज़ायद पब्लिशर्स ने बुक स्टॉल्स कायम कर रखे हैं, जबकि बलोची खानों और सकाफती स्टॉल्स ने कुतुब मेले को मजीद रंगीन बना दिया है। कुतुब मेले की पहली नशिस्त में माहिर तालीम कुर्रतुल ऐन बख्तियारी, रुकन बलोचिस्तान असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान, मारूफ शायरा फातिमा हसन समेत मुख्तलिफ इल्मी और अदबी शख्सियात ने खिताब किया। मोहब्बतों के रिश्ते कैसे कायम होते हैं जब हॉस्पिटल नहीं चलता, मोहब्बतें चलती हैं और वो यहाँ कायम है, उसकी बुनियाद है और हम आज इसी मोहब्बतों की वजह से यहाँ पे हैं। इस किताब मेले में मुख्तलिफ समाजी, सियासी, अदबी और लसानी मौज़ूआत पर गुफ्तगू और पैनल्स होंगे और इस किताब मेले में कराची, लाहौर, क्वेटा, तुर्बत, ग्वादर और मुल्क भर से कुतुब फरोश और उनके स्टॉल्स आके सज चुके हैं। कुतुब मेला ना सिर्फ किताब की नुमाइश कर सकता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर किस्म की सरगर्मी, खासकर हमारी बिजनेस की सरगर्मियों के बारे में यहाँ पे मुल्क दराज से लोग आते हैं, यहाँ स्पीच देते हैं। क्वेटा से किताबों का खुशबू जो है वो पूरे मकरान के लिए, गवादर के लिए, यहाँ के दोस्तों के लिए लाए हैं। इल्मी और अदबी मेले में नामवर अदीब, दानिश्वर, मुहक्किकीन और असातिज़ा शरीक हैं। 4 रोज़ा कुतुब मेले में अदबी मुज़ाकरे, फ़िक्री नशिस्तें, इल्मी मकालमे और किताबों की रूनुमाई होगी। मेले को यादगार बनाने के लिए मुशायरे और म्यूज़िकल प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया गया है। मकामी तहजीब, रिवायात और फ़न को उजागर करने के लिए सकाफ़ती परफॉर्मेंसेस भी पेश की जाएंगी। ये ऐसा इवेंट है जिसका पूरे साल इंतज़ार किया जाता है। इसमें गहमा गहमी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवादर में इल्म दोस्ती, किताब दोस्ती और इल्म से मोहब्बत का क्या आलम है। यहाँ पर बहुत मुफीद किताबें थी जो तलबा और तालिबात की ज़रूरियात के मुताबिक थी। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुझको,
मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो हम स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं। शुक्रिया। मुझे भी यहाँ में मेरी पसंद की बहुत सारी किताबें मिले हैं। गवादर कुतुब मेला न सिर्फ किताबों की नुमाइश है बल्कि इल्म, अदब, मौसीकी और सकाफत का जश्न है। सदाकत बलोच, जियो न्यूज़, गवादर।